good day. Welcome back to yet another episode on SSB Crack Talks. आज के इस SSB Crack Talks के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टर कुशाग्रा कपूर से, जो लखनऊ के हैं और जिन्होंने अपने TGC 136 एंट्री में रिकमेंडेशन हासिल किए हैं फ्रॉम SSB भोपाल। तो चलिए जानते हैं उनका SSB जर्नी कैसा था, कैसे उन्होंने अपनी 4th अटेम्प्ट में ही अपना सक्सेस को हासिल किया। और आप चौंक जाएंगे ये सुन के कि जितने भी कैंडिडेट्स उस दिन एसएसबी भोपाल में रिपोर्ट किए थे फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्री, उनमें से बस एक कुशाग्रा कपूर ही थे जिनको रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ। दिस मे साउंड लाइक अ मैजिक और अ मिरेकल, बट लेट्स नो व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड इट and let us know how you can also crack SSB just like Kushagra Kapoor himself. Hi Kushagra, how are you? I'm fine, Anuradha. How are you? Yeah, I'm fine as well. First of all, I want to, give you congratulations on behalf of SSB Crack Exams and SSB Crack Talks for cracking your SSB on your 4th attempt, that too from SSB Bhopal, and for your TGC 136 entry. It's really a great pleasure for us to have you here. There are a lot of viewers right now जो आपके ये इंटरव्यू से काफी इंस्पिरेशनल जो होने वाला है, ये इंटरव्यू काफी मोटिवेटेड होने जा रहे हैं वो लोग। तो आई होप कि आप आगे जाके वही अपने ड्रीम्स को साकार करो जिसके बारे में आप बचपन से ही सोचते हुए आ रहे हो। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग हियर एंड कांग्रेचुलेशंस। So Kushagra, before we start with your SSB journey, हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताओ उन्हें। Okay, so hello everyone. My name is Kushagra Kapoor. I belong to Lucknow, Uttar Pradesh. I am 22 years of age, and starting with my educational background, I have done my schooling, all the schooling from Lucknow itself, from City Montessori School, Aliganj. Thereafter, after class 12th, I went to Pune. I did my engineering in electronics and telecommunications from Bharati Vidyapeeth University. And post that, I was campus placed in Birlasoft. I worked there for 8 months, and thereafter I left. I resigned from the job to pursue the long journey ahead that was waiting for me. So then I gave my attempts at the SSB, first attempt, second attempt, third attempt, and then managed to do that in 4th attempt. Right, that's great, Kushagra. So आपको फाइनली रिकमेंडेशन मिल गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी थोड़ी बहुत नम फीलिंग है, सिंक इन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इट्स बीन नाउ 4 months and yes, it is a good feeling. It is actually a satisfaction feeling कि okay, so finally process end होता है। जिसके लिए आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे इतने टाइम से, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करी एक रूम में बैठ के प्रिपेयर करना, तो इट इज अ रिलीफ फीलिंग। अच्छा, जब आपने अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को बताया कि मुझे रिकमेंडेशन मिल गया है, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? बहुत खुश हुए थे। मेरा तो मतलब स्क्रीनिंग अभी तक मेरा ऑब्स्टिकल था बहुत बड़ा, तो स्क्रीनिंग होने के बाद ही जब व्हेन आई कॉल माय मदर, सो शी स्टार्टेड क्राइंग, सो आई कंसोल्ड हर कि नहीं अभी तो पूरे 5 दिन बाकी है, अभी तो सिर्फ पहला दिन है। तो आफ्टर देन आई गॉट रिकमेंडेड, सो बहुत खुश हुए थे। एंड when they heard that only I was recommended from a lot of 170 people, so it was double, the happiness was double. राइट, तो जो स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर किया था कुशाग्रा जी, तो आपने कहा था कि आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड एंट्रीज के लिए आपने अपीयर किया है एसएसबी में। क्या आप इन एंट्रीज में कोई भी डिफरेंस ढूंढ पा रहे थे, या फिर कौन सी एसएसबी एंट्री आपको थोड़ा इजी लगा, कौन सा सबसे हार्ड था आपके लिए? सारी एंट्रीज मतलब SSB process is same for every entry. It doesn't matter which armed force you are applying for. For army, I attempted SSB for TGC, and yes, I attempted only for TGC. And for navy, I went for SSC logistics entry. And for coast guard, I attempted a written exam that was conducted for assistant commandant post. So the only difference I felt was that I cleared a written exam for a coast guard entry. For the rest of the 2 entries, I was selected based on the cutoff percentage of my engineering. So that was the only difference. Otherwise, SSB process is same for every entry, and there's nothing like easy or hard.
it's the same process everywhere. You have to prepare same, and you have to go there, backpack, then came back. So it's all same. ओके अभी आई होप कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल आता है कि दिस पर्टिकुलर एसएसबी सेंटर थोड़ा डिफिकल्ट है क्रैक करना, इस एसएसबी में जाओ तो रिकमेंडेशन मिल जाती है। तो कुशाग्रा जी ने ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपका प्रेपरेशन पे डिपेंड करता है कि कौन से एसएसबी से आप रिकमेंडेशन आपको मिल रहा है, राइट कुशाग्रा? ओके, तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने 4th अटेम्प्ट में आपको रिकमेंडेशन मिला था, और इससे पहले जो भी 3 अटेम्प्ट्स आप गए थे एसएसबी में उसमें आपको बस फेलियर मिला। तो इतनी बार एक चीज को आप मन से चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा, इतनी बार आप कोशिश कर रहे हो, तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? किस चीज ने आपको कहा था कि नहीं अब तो आगे बढ़ना ही है, हमें रुकना नहीं है? यस, सो सबसे पहली चीज तो यही थी कि आई हैड रिजाइन फ्रॉम अ जॉब। सो मेरे पास एट प्रेजेंट कोई ऑप्शन नहीं था। आई हैड टू कंटिन्यू, आई हैड टू ट्राई अगेन, बिकॉज आई हैड द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली ऑल्सो, माई फ्रेंड्स ऑल्सो। सो सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि अब कुछ है नहीं करने को, और सो करना ही है ट्राई। तो जब हम ट्राई कर रहे हैं तो वाई नॉट गिव 100% इन इट। सो सबसे पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। आई I have also seen many of the interviews on SSB Crack and other platforms of different recommended candidates. जिसका किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, some have also cracked in the 14th attempt, 20th attempt. So it doesn't matter. एक बार आप recommend हो जाते हैं, no one ask कि आपके कौन से attempt में हुआ था. So it's a process. You have to keep improving, and when you look back after you have got recommended, so it's all different. You are completely changed. You have completely evolved. So that was the thing I kept in mind, and it was all just going in the present and keep working for the process. राइट कुशाग्रा, तो जिस तरह आपने कहा है, जो स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर किया है, वहां पे वी हैव कम टू नो कि आप जो एसएसबी अटेम्प्ट्स मतलब एसएसबी में जाना स्टार्ट किए वो आपके ग्रेजुएशन के बाद ही, मतलब आपको जब जॉब मिल गया था उसके बाद ही आप एसएसबी जाना स्टार्ट कर दिए थे, राइट? तो इससे पहले आपका पर्सनालिटी बिल्कुल अलग था, आप बिल्कुल डिफेंस के लिए तैयारी नहीं किए थे, लेकिन अपने जॉब के बाद ही आप स्टार्ट किए एसएसबी जाना। तो आपकी पर्सनालिटी में आप किस तरह का बदल लाए, किस तरह आपने इम्प्रूव किया आपकी पर्सनालिटी को, सो दैट यू गॉट द रिकमेंडेशन? ओके, सो सबसे पहली चीज तो यही थी कि आई वाज कंप्लीटली फुल टाइम एट माय होम. सो during my job also, it was work from home. So I was at my home after the college. I came back from the college during the COVID time. So since 2.5 years it's been now, and I was completely at my home. So घर पे रह के it's all the daily chores you can do. You can help your mother in the kitchen. You can do other household work. And my mother was also ill, so she got admitted twice last year. So majority of the work fell on my shoulders, because my elder brother, he lives in Delhi. So uh, you know, अपने आप ऐसी situations create हो जाती हैं कि आपको फिर खुद अपने आप evolve होना पड़ता है. You cannot run away from that. So that also helped. I didn't do anything special. I was just being myself at my home. डेली काम जो भी हेल्प करना है और बाकी अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना है. सो इट वाज सफिशिएंट. Okay, that was really I'm really sorry for your mother's illness, but I would say कि जो difficulty आप तब face कर रहे थे, I hope that helped you to make your personality much stronger that you are today. Okay, so actually the difficulties were a boon for you. Yes. Okay, so my next question is कि आप इससे पहले भी एसएसबी जा चुके, जैसे आप बताए कि 2-3 बार आप एसएसबी जा चुके, उसके बाद 4th अटेम्प्ट में आपको रिकमेंडेशन मिला। तो प्रीवियस एसएसबीज में आप ऐसा क्या चीज लैक कर रहे थे जो इस बार आपने इम्प्रूव कर लिया और आपको रिकमेंडेशन मिल गया? Okay, so if I talk about my first SSB attempt, it was in April last year, and just after I resigned from my job. I resigned in February, and April में TGC 135 SSB at Allahabad. So I was very new to the process. I just knew कि okay, screening is there on day one and rest of the tasks are there. So I wasn't prepared much. I wasn't aware of the atmosphere that is there during the screening stage, जो fish market situation होती है. So I was completely lost. I didn't perform my best in the narration of the story, and didn't contribute much in the group discussion also. So that was the first attempt. जैसे तैसे हो गया. After that, I went to Vishakhapatnam for my Navy entry. That was
लाइक पहले एक्सपीरियंस है कि ओके नरेशन अच्छा होना चाहिए, सो आई नरेटेड वेल. ग्रुप डिस्कशन हुआ, उसमें फिश मार्केट हुई. आई लॉस्ट इन द फिश मार्केट. सो इफ आई कंपेयर्ड टू माय फर्स्ट अटेम्प्ट, I improved on my narration part. So that was there in the Navy attempt. Third attempt, Coast Guard, it was very different attempt because uh, I got biometric out in the Coast Guard. So वो attempt तो मतलब वो ऐसे ही था. Actually biometric out क्या हुआ था कि my thumbprint didn't match with the one that was taken during the written exam. So they told me that we can't go ahead and you have to go back. So that was my third attempt. एंड सो मेरे दिमाग में बस यही था कि अभी तक मेरा अभी 2 अटेम्प्ट में मेरे स्क्रीनिंग अटक रहा है. तो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ मेंटली बहुत ज़्यादा. आई हैवंट प्रैक्टिस स्टोरीज बाय राइटिंग. आई जस्ट प्रैक्टिस OIR, दैट टू बिफोर माई नेवी एंट्री. सो मेरा मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के ऊपर फोकस था. आई यूज्ड टू वॉच वेरी मेनी वीडियोज ऑफ द टॉपर्स ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, जो सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताते थे कि किसी की ग्रुप डिस्कशन में फिश मार्केट ऐसी हुई, किसी ने ऐसे बोला. सो देयर वर 2-3 कॉमन थिंग्स दैट वर कमिंग आउट ऑफ एवरी एक्सपीरियंस कि यू हैव टू टेक आउट दैट 1 सेकंड एक्स्ट्रा एंड उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना ही करना है. नो वन विल गिव यू दैट चांस. सो these things were there in my mind and that I kept in my mind. Also the group also matters. आपका जो स्क्रीनिंग के स्टेज में ग्रुप है और बाकी के 5 डेज में जो ग्रुप है, तो दैट शुड ऑल्सो बी कोऑपरेटिव इनफ. ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं पर ग्रुप आपको कोऑपरेटिव नहीं है, तो समझ जाने का कि दिस टाइम इज नॉट योर चांस. सो दैट आल्सो हेल्प्ड मी इन माय फोर्थ अटेम्प्ट. ओके राइट. तो आपने अभी कहा कि बाकी जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज देखे थे, आप सक्सेस स्टोरीज पढ़े थे, वहां से आपने कुछ सीखा. तो आज वो मौका आपको मिल रहा है कि हमारे जो व्यूअर्स है उनको आप मोटिवेट करो किस तरह वो अपने एसएसबी के लिए प्रिपेयर करें. तो मेरा नेक्स्ट सवाल है एसएसबी के बारे में ही. आपके फोर्थ अटेम्प्ट में जहां से आपको रिकमेंडेशन मिला, वहां पे पीपीडीटी में किस तरह के पिक्चर्स आपको मिले थे और आपने किस तरह का स्टोरी उसमें बनाया था? ओके, सो कंपैरेटिवली बाकी 2 अटेम्प्ट से मेरे इस बार की पीपीडीटी थोड़ी इजी थी in terms of the picture shown and in terms of the group I got in the group discussion. So picture was very normal. A boy was sitting there on a table and he was carrying a pen in his hand and he was writing something out of it. So I made a story that is a boy, he has just passed out of the college and he always wanted to pursue his masters from abroad. So he has just started preparing for it. He's taking consultations from his family and his teachers, and he's preparing. He has given mock exams, analyzed his weaknesses, and so on and so forth. So this was my story, and most of the everyone in the group made a story like this only. So it was easy. My group also was very cooperative. It was a peaceful group, so no fish market was there in my group. So that helped a lot. ओके नाइस. सो अभी बात करते हैं साइक टेस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स जो है उनको लगता है कि साइक टेस्ट में गड़बड़ हो गया था हमारा, या फिर क्या होगा. यू नो द साइकोलॉजिस्ट कैन डिड्यूस डिफरेंट साइकोलॉजी फ्रॉम आवर्स, जो हमें भी नहीं पता, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है कॉन्शियसली तो साइक टेस्ट नहीं ले सकते. तो आपका साइक टेस्ट कैसा गया था? कितने टैट वैट एसआरटी और एसडीटी आपने आंसर करके आ पाए थे? और अगर आप कुछ आपको याद है कि टैट के कुछ पिक्चर्स उस पे आप किस तरह के स्टोरीज लिखे थे, या किस तरह के वर्ड्स आए थे वैट में, किस तरह के सिचुएशंस आए थे एसआरटीज में, अगर आप बता सकते हैं. ओके, सो साइक टेस्ट के बारे में एक चीज है कि यू कांट डू मच अबाउट इट. इट इज जस्ट दैट देयर इज अ प्रोसेस. यू हैव टू गो विद द फ्लो. यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन जो भी आपके माइंड में आ रहा है. यस, 2-3 चीजें हैं जिसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई नेगेटिव वर्ड देख के आपके माइंड में कोई नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, यू कैन मैनिपुलेट इट टू अ पॉजिटिव वन. सो 2-3 मैनिपुलेशंस आप कर सकते हैं, बट इट्स ऑल नेचुरल. वो ये नहीं चेक कर रहे हैं कि आप सही हैं या गलत. दे आर जस्ट चेकिंग इफ यू आर फिट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस और नॉट. सो यू कैन डू मच अबाउट इट. सेकेंडली, यू हैव टू बी क्विक इन योर राइटिंग. सो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो. बीइंग अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, हम ग्रेजुएट्स की थोड़ी स्पीड सही होती भी है, इंजीनियर्स की थोड़ी होती भी है, मतलब वी नो हाउ टू राइट थिंग्स. सो दिस वाज देयर एंड दैट वाज गुड. ऑल द पिक्चर्स वर, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी. आई अटेम्प्टेड ऑल द 12 टैट्स and that was it. That, yes, I had heard earlier that
इट्स बेटर टू अटेम्प्ट ऑल द 60 वैट्स, बिकॉज अगर आप मिस करते हैं तो वहाँ चांस खो जाता है. बट मेरे खुद 53-54 अराउंड वैट्स हुए थे, तो वो भी एक मिथ टूट गई कि ऐसा कुछ नहीं होता है. SRTs, यस, बहुत लोगों की छूट जाती हैं. 60 में आई अटेम्प्टेड 40 SRTs अराउंड, so that was all okay, and I just kept myself natural. कभी कोई साइक की प्रैक्टिस नहीं करी, just went through the material that was given on SSB crack or any other site for that matter. So just to take an idea कि लिखना कैसे है, टैट 10 sentences में complete होनी चाहिए स्टोरी, तो I made sure that I completed in within 10 sentences. That 5-6 वर्ड से ज़्यादा एक सेंटेंस नहीं होना चाहिए. पॉजिटिव होना चाहिए, कोई फैक्ट नहीं होना चाहिए. कैन, नेवर, ये सब वर्ड्स जो बोले जाते हैं कि नहीं यूज करने, नहीं यूज करने. दिस वाज द थिंग आई केप्ट इन माइंड. बाकी इट वाज ऑल नेचुरल. एंड SD आई प्रिपेयर्ड beforehand. So it, वो मतलब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सब कुछ बता सकते हैं अपने बारे में. No one is there to judge you on that, and you can express freely. So this was all Sai. राइट ओके तो उनका यही एडवाइस है हमारे दर्शकों से कि जितना आप खुद को नेचुरल रख सको और अपनी ट्रू सेल्फ को दिखा सको, उतना ही आपका साइट टेस्ट सही जाएगा. थैंक यू सो मच कुशाग्रा. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पर्सनल इंटरव्यू रिलेटेड, क्योंकि आप टेक्निकल एंट्रीज के लिए दोनों बार ही गए थे, इन दी नेवी एंट्री ऑल्सो, इन दी आर्मी एंट्री ऑल्सो. तो किस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और आपका सजेशन क्या होगा उन लोगों के लिए जो टेक्निकल एंट्रीज के लिए SSB जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे से तो कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा नहीं इंटरव्यू में. आई वाज आस्क्ड वन टेक्निकल एस्पेक्ट इन माय कॉन्फ्रेंस, दैट टू वाज रिलेटेड टू द बायोमेट्रिक थिंग इन द कोस्ट गार्ड दैट आई एक्सपीरियंस्ड. बाकी इन माय पर्सनल इंटरव्यू, आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट वेंट इन माय SSB वाज माय पर्सनल इंटरव्यू, बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू कि मेरा इंटरव्यू मतलब सही जाने वाला है, क्योंकि आई हैड सीन मेनी ऑफ द मॉक इंटरव्यूज ऑन यूट्यूब. आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, सो आई used to see the mock interviews of those aspirants also. So I knew how to present yourself when you are being grilled, how to react, how to counteract. So that was in my mind. Also, it's very important to be natural and honest as much as you can. जो है सब बता दो. नहीं पता है सीधा बोल दो I don't know. If you tend to say I don't know for 10 consecutive times, no problem in that. जो पता है बता दो. They are only checking your approach towards the interview and how honest you are with yourself and to the interviewer. So that was there. And मेरा interview mostly was around my background, family, friends, किसके साथ रहते थे college time में, कैसे रहते थे, how you spend your time in household, family के साथ कैसे, अकेले में कैसे, and my educational background. So these were the things. Also some general knowledge questions in the end, uh, about the neighbors, capitals of the neighbors. That was very easy. So, and apart from that, some places were asked from me ki, which city is famous for this. So मतलब सूरत किस लिए famous है, दार्जिलिंग किस लिए famous है. These were the easy questions asked. So interview was not a problem for me. अच्छा, इंटरव्यू को लेके ही ज्यादातर कैंडिडेट्स के मन में ये डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरह आंसर कर पाएंगे या नहीं. नर्वस फील करते क्योंकि कोई नहीं रहता रूम में, बस इंटरव्यूइंग ऑफिसर रहते जो कि काफी सीनियर ऑफिसर रहते हैं और बस कैंडिडेट रहता है. तो अगर आप उनको कुछ टिप्स देना चाहोगे कि पर्सनल इंटरव्यू को अप्रोच कैसे करना है, और अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहोगे कि अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को प्रोजेक्ट कैसे करना है. ओके, सो पर्सनल इंटरव्यू, सबसे पहली चीज़ तो आपने जो लिखा है PIQ वो आप थ्रो होना चाहिए. जो है वही लिखना चाहिए. कुछ भी काफ़ी लोग बढ़ा के लिखते हैं कि मैंने ये किया है, वो किया है, एंड व्हेन दे आर आस्क्ड फ्रॉम दैट, दे आर नॉट एबल टू आंसर. सबसे पहली चीज़ तो ये, आपने कुछ नहीं गेम्स स्पोर्ट्स खेला है, कुछ मत लिखो. जस्ट राइट कि मैंने कभी पार्टिसिपेट किया था, नहीं भी किया था तो इट्स ओके, ऑलराइट. दूसरी चीज़, यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर एजुकेशन. साइंस पढ़ी है तो साइंस का थोड़ा बहुत बेसिक थिंग्स. टेक्निकल एंट्री है तो बेसिक क्वेश्चंस पता होने चाहिए. कैपेसिटर क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है. फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय ब्रांच, कंप्यूटर्स पढ़ी है तो थोड़ा बहुत कोडिंग लैंग्वेजेस कौन सी चल रही है, व्हाट इज द करंट सिनेरियो, ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. ऑल्सो अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स बहुत ज़रूरी है. करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या चल रहा है, डिफेंस में क्या चल रहा है, बहुत ज़रूरी है. एंड फैमिली, फ्रेंड्स, सब
किसके साथ रहे हैं, आप कैसे रहे, ये सब पता होना चाहिए। पहले से आप ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है रैपिड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कंटिन्यूअसली पूछते हैं इंटरव्यूअर, वो सब जगह पूछे ही जाते हैं। सो यू कैन प्रिपेयर दैट बिफोरहैंड, और बाकी जो नहीं पता है यू कैन से आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। सो कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, एंड थोड़ी बहुत नर्वसनेस इज़ एट एन एडवांटेज ऑब्वियसली, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा सीनियर है, उनको भी पता है कि बंदा आया इंटरव्यू में तो वो थोड़ा बहुत नर्वस हो सकता है। सो बाकी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड बी ऑडिबल इनफ, यू शुड बी क्लियर, थोड़ा बहुत बीच में स्माइलिंग फेस, दैट विल डू। अच्छा, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू डिफेंस। अभी क्योंकि आप लोग सब डिफेंस में जा रहे थे, आप भी ऑब्वियसली एसएसबी में गए हो, और बहुत सारे व्यूअर्स भी है जो ये सोचते किस तरह के डिफेंस क्वेश्चंस आ सकते, पूछ सकते, तो कैसे प्रिपेयर करना है, तो किस तरह के डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था? मेरे से एज सच डिफेंस रिलेटेड भी नहीं पूछा था इंटरव्यू में, बट यस, आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उस टाइम करंट सिनेरियो में, इफ आई रिमेंबर, defense में there were 2-3 new technologies added, like Nipun was added, and there was a submarine anti-water vessel that was inaugurated in Ladakh. So these were the things that I was aware about. बाकी defense exercises are important, किसके साथ किसकी चल रही है, वज्र प्रहार जैसे currently अभी US के साथ हुई थी। So these are the things important हैं। बहुत ज़्यादा weapons कौन सी है, प्लेटून में कितना होता है, बटालियन में कितने होते हैं, हु हेड्स दैट, इतना नहीं इम्पोर्टेंट है। बेसिक बेसिक थिंग्स इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कमांड्स कहाँ लोकेटेड है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ज़रूरी नहीं कि आप जिस फोर्स की एंट्री में जा रहे हैं उसी के क्वेश्चंस पूछे जाए, आपसे नेवी एयरफोर्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रैंक स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है कंपेयर करके कि कैप्टन इन आर्मी इज इक्वल टू व्हाट इन नेवी एंड एयरफोर्स। सो इस टाइप से इट्स ओके कि आपको पता है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, बट ऑल्सो इफ यू आर फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, सो आपको अपने फादर या मदर जो भी रहे हैं सर्विस में, उनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। काफ़ी होते हैं, आई हर्ड दैट देयर वाज़ अ पर्सन हुज फादर वाज़ इन एयरफोर्स एंड ही डिडंट न्यू कि वो कौन-सी रैंक पे है। सो दैट इज़ ऑब्वियसली अ ब्लंडर। सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आपसे रिलेटेड है। नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपको आगे जाके ट्रेन कर ही देंगे उसमें। राइट। तो अभी आपके इंटरव्यू में आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स के बारे में क्या कोई सवाल पूछा गया थे? अगर हाँ, तो आपने उसका आंसर कैसे किया? प्रीवियस अटेम्प्ट्स एज़ सच मेरा तो कोई बहुत ज़्यादा रहा नहीं। आई वाज़ स्क्रीन्ड आउट ट्वाइस, देन बायोमेट्रिक आउट। सो बायोमेट्रिक आउट पे आई वाज़ एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन, बिकॉज़ आई हैव रिटन आल्सो, एंड इट्स अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स थिंग, क्योंकि किसी के साथ होती नहीं है ऐसा। तो इंटरव्यू में तो नहीं, आई वाज़ आस्क्ड इन द कॉन्फ्रेंस, बट इंटरव्यू में बाकी प्रीवियस अटेम्प्ट्स में मेरे से कुछ नहीं पूछा, बिकॉज़ इट इज़ अ स्क्रीन्ड आउट। सो अब स्क्रीन आउट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। सो इट्स अ मैटर ऑफ चांस एंड टाइम आल्सो। So I wasn't asked about my previous attempts. You are ओके, या सो आपके एसएसबी में कौन सा टास्क आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था और कौन सा टास्क उतना भी अच्छा नहीं था आपका? in my GTO, I think all the tasks were very good. Again, my GTO group was the best. बहुत ज़्यादा cooperative, and GD भी हमारा अच्छा गया था. It was peaceful. Everyone was able to contribute in the GD, and in the PGT and HGT is also the everyone contributed with the ideas. बहुत ज़्यादा किसी को ideas आए भी नहीं थे, but we all supported each other. रोप टाई करने में, प्लैंक पकड़ने में, लोड पकड़ने में, so we all were involved. So every task was good, and individual obstacles were also good. I performed 8 out of 10 obstacles, so that was my first hand experience in these tasks. So every task was good. आपने जीडी का बात अभी कर रहे थे, तो जीडी में किस तरह के टॉपिक्स पूछे जा रहे थे और आप प्रिपेयर कैसे करके गए थे जीडी के लिए? Okay, so again GD also, it was matter of luck कि easy topic मिला हम लोग को, रशिया यूक्रेन वॉर पे, जो बहुत ज़्यादा उस समय हॉट टॉपिक था। So that was there. Uh, yes, so that was there. So the Russia-Ukraine war था, everyone was expecting something easier, so it was prepared. बाकी दूसरा topic was juvenile justice, so we weren't prepared much for that topic, but still everyone contributed थोड़ा थोड़ा. Again, GD ऐसी चीज़ है कि if you don't know much about that topic, so keep quiet. Do not initiate a GD unnecessarily. जब बाकी लोग कुछ पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने आप आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स आने लगेंगे।
because you have prepared, right, for different topics. So आप दूसरे के पॉइंट से लिंक लेके भी निकाल सकते हैं, बिकॉज द जीटीओ इज लुकिंग एट यू. वो समझ जाते हैं कि इस बंदे को इस टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं पता है, पर वो फिर भी कितनी स्मार्टनेस है दूसरे के पॉइंट से अपना पॉइंट नया बना के उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड दैट इज वैलिड इनफ, लॉजिकल इनफ. सो दैट आल्सो एड्स टू द परफॉर्मेंस. सो यस. राइट. तो आपके ग्रुप टास्क में कमांड टास्क क्या था और आपने वो कमांड टास्क को कैसे सक्सेसफुली हासिल किया? क्योंकि अभी बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो कमांड टास्क को लेकर थोड़ा घबराते हुए रहते हैं, क्योंकि कमांड टास्क का मतलब होता है कि आपको फुल चार्ज दिया जा रहा है. तो आपका कमांड टास्क कैसा था? क्या टास्क मिला था आपको? यस. सो मेरा भी ऐसा था कि कमांड टास्क को लेके आई वाज वेरी नर्वस बिफोर माय एसएसबी, क्योंकि पीजीटी एचजीटी में क्या है कि आप एक पूरे ग्रुप के बीच में हैं. आप हाइड कर सकते हैं आइडियाज ना बता के. दूसरे ने आइडिया बताया तो आप तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा सकते हैं कि मैंने भी कुछ किया. कमांड टास्क में आप छुप नहीं सकते. यू आर द कमांडर, आपको सामने एक्शन लेना पड़ेगा, एंड ओनली जीटीओ इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सबऑर्डिनेट्स अलग से खड़े रहते हैं. So मेरा भी ऐसे था, and also my command task was different from all the candidates, 31 candidates. मेरा bomb diffusing task था, and I was मतलब वो task बहुत ज़्यादा difficult नहीं था. I completed that task, but मेरे से grill बहुत किया गया था. मेरे से conceptual questions बहुत पूछे गए थे कि plank mid point पे लगाएंगे तो कैसे बनेगा, और 75% प्लैंक का कहाँ होगा, ऐसे जाएंगे तो कैसे होगा, टावर के यहाँ पे रखेंगे तो कैसे होगा. सो दीज ड्रिलिंग क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम मी टू चेक माय कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो आपने ये मैनेज कैसे किया? सो सबसे पहली चीज इसमें ये थी कि इट वाज ऑन द जीटीओ डे 2. सो जीटीओ डे 1 में यार जीटीओ वाज मतलब ही वाज वेरी पुटिंग प्रेशर ऑन अस during the PGT and HGT task, and he was giving some hints in between कि you have to make a fulcrum from 2 planks, कैसे fulcrum बनाना है so you can move ahead. So those related things were asked from me on the day 2 during the command task. I think he was checking कि I remember that or not. So he was checking me कि midpoint पे fulcrum बनेगा कि peak पे fulcrum बनेगा. So I was explaining thing. He was nodding also. So I was getting the feeling okay, he's getting contended now. So these were the things that were asked from me. ओके, तो अभी हम लोग मूव करते हैं लेक्चरेट की ओर. तो लेक्चरेट को लेके भी बहुत सारे जो दर्शक होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो थोड़ा डरा हुआ रहता है, क्योंकि 3 मिनट में आपको उसके बारे में सेटिस्फैक्टरी लेक्चरेट देना पड़ता है. तो आपका लेक्चरेट कैसा था? आपको किस तरह के टॉपिक्स मिले थे लेक्चरेट में? कौन सा टॉपिक आपने चूज किया था और कैसे आपने घर से प्रिपेयर करके आए थे लेक्चरेट के लिए? ओके, सो हमेशा से ये मिथ रहा है कि लेक्चरेट में नेवर चूज अ टॉपिक दैट इज वेरी इजी. माय हॉबी, माय फैमिली, माय फ्रेंड, माय रोल मॉडल, ये सब नहीं. आई चूज अ टॉपिक दैट वाज माय हॉबी. सो मेरे 4 टॉपिक्स थे. फर्स्ट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड वाज आईटी, थर्ड वाज माय हॉबी, एंड फोर्थ वाज आल्सो समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं. आई प्रिपेयर्ड ऑल्सो, पॉलिटी बहुत ज़्यादा पढ़ ली थी तो कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं. बट आई वाज ऑफ द फीलिंग कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर फैक्ट इधर उधर हो गए तो कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा एंड फिर इंप्रेशन भी खराब पड़ेगा. तो आई थॉट कि चलो माय हॉबी पे बोल देते हैं. टॉपिक इफ दैट इज गिवन इन द ऑप्शंस, so it is available to for you to speak. So ऐसा कुछ नहीं है कि इजी टॉपिक है या डिफिकल्ट टॉपिक है. आपको 4 टॉपिक दिए हैं उन्होंने, तो मतलब आप बोल सकते हैं किसी पे भी. So I spoke on my hobby. My hobby, I used to watch football, so I blasted out on football. So it was okay for me. So yes. ओके, तो जैसे मैं बता रही थी, ग्रुप टास्क को लेके भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थोड़ा सा हेजिटेंट रहते हैं, थोड़ा सा उनको डर रहता है. तो ग्रुप टास्क के लिए आप किस तरह के सजेशंस देना चाहोगे? Yes. So ग्रुप टास्क में भी सबसे पहली चीज की ये भी एक मिथ है कि अगर आपने आइडियाज नहीं दिए हैं तो आपका सिलेक्शन बेकार गया. It is not like that. You have, the most important thing is you have to be involved in every task. आपको ये नहीं कि आप अलग से खड़े हुए हैं. कोई भी सामान लेके पकड़ के खड़े हो जाओ अगर आइडियाज नहीं आ रहा है तो. रस्सी पकड़ के खड़े हो जाओ, किसी से नई नॉट टाई बांधने आ रही है तो यू कैन टाई द नॉट. सो ये सब चीजें आप पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइंग द नॉट रोप से, क्योंकि काफी लोग नहीं कर पाते हैं. उनको आता होता है पर वो नर्वसनेस में उस समय नहीं कर पाते हैं, प्रेशर में. सो इफ यू आर जस्ट डूइंग दैट ऑल्सो, सो इट विल एड. ऑल्सो आइडियाज, यू यू कांट डू मच अबाउट दैट ऑल्सो. साइक की तरह ये भी, क्योंकि
आप ऑब्स्टिकल्स अगर किसी कोचिंग में है, आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वही सेम ऑब्स्टिकल वहाँ पे हो, उसी डिज़ाइन, उसी स्ट्रक्चर में। सो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते। वीडियोज़ भी आप यूट्यूब पे थोड़े बहुत देख सकते हैं। आई हैव आल्सो वॉच्ड सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। सो बाकी आपको उसी पॉइंट पे ही आएँगे आइडियाज़। आपका दिमाग चलेगा कि ओके, यहाँ से यहाँ ऐसे कर सकते हैं। अगेन दूसरा कोई आइडिया प्रेज़ेंट कर रहा है, तो उसके में से भी आप आइडिया निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसका थोड़ा मॉडिफ़ाई ऐसे कर देंगे, तो वी कैन गो थ्रू। other than this, being involved is very important. लोड पकड़ के खड़े हो जाओ, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी के साथ कोई को, बिकॉज देयर इज अ रूल कि कोई एक बंदा नहीं लोड पकड़ना है, दो पकड़ने हैं, तो यू कैन बी द सेकंड पर्सन. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू इन योर ग्रुप टास्क. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे का. आपका कॉन्फ्रेंस था, तो कॉन्फ्रेंस में आपको किस तरह का सवाल पूछा गया था? ओके, सो कॉन्फ्रेंस वाज इंटरेस्टिंग. मेरे को सबसे ज़्यादा वेट कराया था. मेरी कॉन्फ्रेंस भी सबसे ज़्यादा लंबी चली थी, तो एक ये भी मिथ होता है कि आपको वेट करा रहे हैं, लंबा चला रहे हैं, तो देयर इज़ अ चांस, बट आई डिडंट थिंक अबाउट इट. सो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे नाम का मतलब पूछा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम? आप अपनी नाम की मीनिंग कहाँ-कहाँ से पता कर सकते हैं? हू टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ योर नेम? These were the questions that were asked in my conference. From the president sir was there. Apart from that, the biometric thing came in the picture. So I was asked, क्या था ये? What were the reasons? So you are the engineer, so क्या technical aspects हो सकते हैं biometric out होने के? So I told him कि सबसे पहली चीज़ तो सर system error हो सकता है, machine में गड़बड़ हो सकती है. The thing that the database that was used from the written exam to verify the my thumbprint, उसमें कुछ एरर हो सकता है. मेरे भी एरर हो सकता है. I haven't put my thumb properly during the written exam. So these are the things. So उस पे भी मेरे को थोड़ा बहुत ग्रिल किया कि अच्छा दोबारा ऐसी सिचुएशन हो तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे. So I told him कि I will try to contact a senior officer जो भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे. So these are the things that was asked from me. And also ये भी पूछा गया था कि कौन से टास्क अच्छे हुए, एंड आपके जीटीओ ग्रुप में व्हाट डू यू थिंक कि आप अपने आप को कहाँ रैंक करेंगे? आपको क्या लगता है कि आपसे ज़्यादा चांस किसका है आपके ग्रुप में, व्हिच चेस नंबर? सो दीज़ वर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड. ओके, तो अभी मैं पूछती हूँ आपको, जब रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे थे वो लोग, और टाइम बहुत ज्यादा, मतलब वो होता है ना कि एक हम लोग दिल थाम के बैठते हैं कि किसका नाम आएगा, किसका चेस नंबर अनाउंस होगा. तो आपको कैसा लग रहा था वो रिजल्ट के से पहले, और आपका रिएक्शन क्या था जब आपने अपना चेस नंबर सुना? ओके, सो कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे बताया कि वेटिंग टाइम मेरा बहुत ज़्यादा था, एंड कॉन्फ्रेंस भी कंपैरेटिवली लंबी चली थी. लंबी इन द सेंस कि इट वाज़ 15-20 मिनट्स, बट कंपेयर्ड टू अदर्स इट वाज़ द लॉन्गेस्ट. So everyone was coming and asking chess number 11 की कॉन्फ्रेंस लंबी चली है, इसका चांस बन रहा है. So I was getting a little positive feeling out of it, but only me was very surprising. I called out my chess number 11 and I stood up, went there, and the psych was there announcing the result. So he said, "That's all for the day. Only one of you has been recommended." So it was a very numb feeling. I cannot put in words. यस, सो दैट इज रियली रियली शॉकिंग, क्योंकि बस एक ही जन रिकमेंडेशन मिला था, एक ही जन को, और वो थे आप खुद. तो ये जो आप ही एकमात्र रिकमेंडेड हुए थे एसएसबी भोपाल से फॉर टीजीसी 136 एंट्री, आपको क्या लगता है कि क्यों हुआ ऐसा? आपके अंदर उन्होंने क्या ऐसी चीज देखे जो किसी और में नहीं था? किसी और में नहीं था. आई थिंक ये मिस्ट्री रहेगी फॉरएवर, बिकॉज़ ये तो उनको ही पता है कि मेरे को क्यों लिया, उन बाकियों को क्यों नहीं लिया. आई थिंक आवर ग्रुप वाज़ वेरी गुड. एवरीवन वाज़ वेल इन देयर पर्सनैलिटी. सबने अच्छे से कंट्रीब्यूट भी किया था. आई वाज़ इन द स्क्रीन्ड आउट ग्रुप, तो रिपीटर्स ग्रुप में भी आई न्यू मेनी कैंडिडेट्स. दे वर आल्सो गुड. उसमें से 2-3 वर प्रीवियसली रिकमेंडेड आल्सो. सो आई वाज़ थिंकिंग ऑफ देम आल्सो making through. So overall, everyone was good, but I don't know why they only selected me. Okay, so maybe the universe wanted and you got Maybe. selected, maybe. Okay, right. तो अभी आप उनको क्या क्या सजेशंस, क्या टिप्स देना चाहोगे जो अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए जाने वाले हैं और प्रिपेयर करते हैं? Yes. So सबसे पहली चीज तो कि ये फेलियर सक्सेस ये सब सिर्फ वर्ड्स हैं. लाइफ वांट टू इंटरेक्ट विद यू, तो एक इंटरफेस मिल गया है.
कि फेलियर के थ्रू इंटरेक्ट करना है, सक्सेस के थ्रू इंटरेक्ट करना है। आई थिंक सक्सेस के बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। एक फेलियर के बाद आप वापस पीछे बैक डाउन कर सकते हैं, अगर फिर से कोई ऑब्स्टेकल आता है तो, क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा है, तो आपके लिए ईज़ी भी रहता है। सक्सेस मिलने के बाद यू कैन नॉट बैक डाउन, बिकॉज़ आपसे फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि ओके, ही इज़ रिकमेंडेड, ही इज़ अ पर्सनैलिटी दैट इज़ सेलेक्टेड बाय द आर्मी ऑफिसर्स। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। सो ये नहीं सोचना है कि नहीं हुआ तो ओके, क्यों नहीं हुआ? मेरे को नहीं करना है ये वो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। लाइफ इज़ गिविंग यू सम एक्सपीरियंसेस, सम थिंग्स। आपको इतना दूर 2-2 3-3 दिन की जर्नी करके इतने दूर सेंटर पे जाना पड़ रहा है। फिर आप स्क्रीन आउट होके उसी दिन वापस आ जा रहे हैं, तो इट हैज़ अ मीनिंग, बिकॉज़ देयर आर हंड्रेड्स एंड लैक्स ऑफ ऑफिसर्स जो इसी प्रोसेस के थ्रू गए हुए हैं। हमारे आर्मी चीफ सर भी गए होंगे। सो इट इज़ डिज़ाइन्ड इन सच अ वे कि वो आपको इवॉल्व करेगी ही करेगी, अगर आप सिंसियर हैं तो। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंटिन्यू योर एफर्ट्स एंड मेक श्योर व्हाट यू आर डूइंग। आपका जो काम है आपको पूरा अच्छे से वो करना है, 100% देना है, एंड रेस्ट एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। सो it's important to being in the present, give your 100% in what you are doing, what is expected out of you, and yes, time आएगा, chance होगा, so everything will fall into place. राइट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग अस, आपके प्रिपरेशन के वक्त एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ने आपको कैसे हेल्प किया? Yes, so SSB Crack is a good site. I mainly watched videos like this, recommended candidates के videos. The main thing was this only, listening to experiences of different candidates. Also some basic materials, like I haven't practiced by writing many psych or stories, ये सब I haven't done much. So I used to read things. I used to read situation SRTs की अच्छा इसका response कैसे हो सकता है, बैड का कोई वर्ड है, एब्रप्ट है तो उस पे कैसे सेंटेंस बन सकता है, टैट की स्टोरीज कैसे, कोई पिक्चर आई तो उस पे कैसे स्टोरी लिखी है, उसकी अपोजिट कुछ थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है तो उस पे कैसे अप्रोच है। आई यूज्ड टू मेक माय टेम्पलेट आउट ऑफ इट, एक माइंड में टेम्पलेट बिठाना कि अच्छा इस टाइप की चीज पे ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए। सो दैट आई यूज्ड टू सी, एंड एसएसबी क्रैक का मटेरियल काफी अच्छा है। ऑल्सो दे आर डिफरेंट अदर साइट्स ऑल्सो, यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो दैट आई रिफर्ड। जीटीओ के लिए अलग हो गया, किसी के लिए जिसका भी अच्छा लगा, दैट हेल्प्ड मी, बिकॉज दे आर मेनी थिंग्स कि आप 1 घंटे का वीडियो देख लो या कुछ पढ़ लो तो इट डजेंट हेल्प, बट एक सेंटेंस या एक सेंटेंस चाहिए होता है, वो आपको क्लिक कर जाता है। सो दीज वर द थिंग्स दैट हेल्प मी। सो yes, very helpful that SSB Crack and other sites are there to help us out. थैंक यू सो मच, एंड वी फील वेरी प्राउड जब आपके जैसे यंग कैंडिडेट्स जो है वो उनको रिकमेंडेशन मिल जाता है ताकि दे कैन गो एंड यू नो बी अ पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज डिफेंस सर्विसेज। सो कुशाग्रा, में नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मेडिकल्स। अभी बहुत कैंडिडेट्स हैं जिनको मेडिकल से भी थोड़ा सा हेजिटेंट फील होता है कि चलो ये तो कर लेंगे, रिटर्न तो हो जाएगा, एसएसबी भी कर लेंगे, मेडिकल्स के लिए तैयारी कैसे करें? तो आपको अगर कोई भी सजेशंस या टिप्स देना है फॉर कैंडिडेट्स गोइंग फॉर मेडिकल्स, और आपका मेडिकल्स कैसा हुआ था, क्या क्या चीजें मेडिकल्स में होता है, अगर यू कैन गिव एन ओवरव्यू ऑफ इट। Okay. See, medicals is like, medicals थोड़ा वो heavy word है। तो it is a check of your body, जो आपकी बॉडी है, अगेन वो नेचुरल है, जो है वही दिखेगी आपको। आप मैनिपुलेट कुछ करने जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, कुछ कर लिया 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो पता चला कुछ उल्टा ही हो गया। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप अ बेसिक फिटनेस, जो आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स एंड अदर टास्क में भी हेल्प करे। आपकी बॉडी ठीक दिखनी चाहिए उनको। बाकी मेडिकल्स जो है वो है, आई थिंक यस, तो बेसिक रनिंग, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एंड ऑल, थोड़ा तो वो बॉडी शेप में रखती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, बहुत टेंशन नहीं लेना है मेडिकल्स के लिए भी, क्योंकि उसमें भी कुछ कभी-कभी ब्लड प्रेशर बढ़ गया या कुछ हो गया, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, स्लीप प्रॉपर लेनी है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। ऑल्सो मेरे मेडिकल्स में मेरे को तो स्वेटी पाम्स पे टीआर भी मिला था, बिकॉज आई न्यू दैट, बिकॉज मेरे आते हैं स्वेट। तो आई वर्कड ऑन दैट, आई took a treatment for 35-40 days and then went back to the appeal and I got fit. So these are the things, बहुत ज़्यादा stress नहीं लेना है। medicals after recommendation वो काफ़ी सारे लोग होते हैं recommended candidates, तो उनके साथ अच्छा टाइम जाता है। You go in a bus to the hospital and then फिर वापस आना, तो it is a good time। बहुत उसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है मेडिकल्स में।
ओके राइट, तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका प्लान्स क्या है बिफोर यू आर गोइंग टू जॉइन द एकेडमी? सबसे पहले तो फिटनेस थोड़ी और ज़्यादा करनी है ठीक, बिकॉज दे आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द एकेडमी। वहाँ पे रगड़ा अलग मिलता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो माय फोकस इज फर्स्ट ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा इधर उधर टाइम स्पेंड, इधर उधर जाना घूमना, तो दैट इज माय बकेट लिस्ट। यस। ओके, तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कुशाग्रा जी कि अगर आप हमारे कैंडिडेट्स को, जो भी बहुत बार एसएसबी जा चुके हैं, फेलियर फेस करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा वो सैड भी है क्योंकि उनको आसानी से सक्सेस नहीं मिल रहा है बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, तो अगर आप उनको थोड़ा कुछ भी बोल के मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ टिप्स दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं? यस, सो सी सबके अपने अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल आई एम यंग, आई एम 22 इयर्स ऑफ एज, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं था जॉब का। सो माय फैमिली सपोर्टेड एंड आई वाज फ्री इनफ टू गिव एज मेनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एज पॉसिबल एटलीस्ट फॉर 2 इयर्स। सो आई डिड दैट। काफ़ी लोग 25-26 के हो जाते हैं, उनके अटेम्प्ट्स 10 प्लस 15 प्लस हो जाते हैं एंड दे आर स्टिल नॉट एबल टू क्रैक। सो they have to analyze by themselves only because they are experienced more than me. So I don't know that what I will say and it will work from them for them. So सबसे पहले तो आपको अपने सिचुएशन समझनी है। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ योर फैमिली, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ योर करंट सिचुएशन, कि आपको एक जॉब लेनी है कि नहीं। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो ट्राई टू बैलेंस इट आउट। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड यू हैव टू टेक आउट टाइम। तो वो बैलेंस करना ज़रूरी है, वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। अगर एसएसबी नहीं क्लियर करेगा तो कहीं और हेल्प करेगा ही करेगा। ऑल्सो काफ़ी आप जब फेल होते हैं तो अलग-अलग तरीके से फेल होते हैं, अलग-अलग सिटीज़ में फेल होते हैं। एसएसबी इलाहाबाद गए, स्क्रीन आउट हो गए, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, फिर एसएसबी वाइज़ैग गए तो वहाँ पे अलग तरीके से कॉन्फ्रेंस आउट हुए। दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। सेम अगर हो तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि सेम एक्सपीरियंस हुआ तो मेरे 3 महीने के अंदर का टाइम खराब हुआ। But that is not the same. Experiences अलग-अलग. So it has a meaning attached to it. So again, so you have to work it out. You have to analyze. You have to self introspect. वो आपको फिर आप आगे आपको मौका मिलता है इंटरव्यूअर जब पूछेंगे कि हाउ हैव यू इम्प्रूव्ड, सो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा, आप बता पाओगे। आप मान लो बिना इम्प्रूव किए गलती से पहुंच भी गए, आपको पूछेगा कि आपने कैसे इम्प्रूव किया एंड यू आर नॉट एबल टू टेल, सो दैट विल आल्सो नॉट हेल्प। सो keep going and I'm a huge admirer of MS Dhoni, so I remember one line of him कि what doesn't kill you makes you strong. सिंपल फंडा है ये, you have to keep going. जब तक है, जब तक कर सकते हैं, keep doing it. Nice, Kushagra. Thank you so much for motivating these young people who are trying hard to get into the defense services. And I want to congratulate you once more, Kushagra, कि आप अपने life में और आगे बढ़ो. You don that bright uniform and serve our mother India. Thank you also for coming to this show of ours and sharing all your precious moments with us and sharing your SSB journey with all the viewers here. Thanks a lot, Kushagra. Thanks a lot. Thanks a lot to SSB Crack. I'm honored. It's all a pleasure. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।